कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन निर्मित करने वाली भारत बायोटेक की तरफ से आज बड़ा बयान दिया गया। थोड़ी देर पहले भारत बायोटेक के सीएमडी कृष्णा एल्ला ने कोवैक्सीन को लेकर बड़ी बातें बताई। ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुनी है और ये सबको जाननी चाहिए इसकी बातें। भारत बायोटेक की तरफ से क्या क्या कहा गया है, इसकी बड़ी बातें हम आपको बताते हैं। कोवैक्सीन बनाने के लिए एक बहुत बड़ा क्लिनिकल ट्रायल किया गया है। भारत बायोटेक दुनिया भर में क्लिनिकल ट्रायल करती है, सिर्फ भारत में नहीं। टाइफाइड की वैक्सीन भारत बायोटेक ने बनाई है। चिकनगुनिया का वायरस खत्म करने के लिए जो वैक्सीन निर्मित हुई, सबसे पहले भारत बायोटेक ने तैयार की थी। भारत बायोटेक के एमडी कृष्णा एल्ला ने कहा कि नोवल वैक्सीन के क्षेत्र में हम ग्लोबल लीडर हैं, यानी नई वैक्सीन बनाने के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर है ये कंपनी। और चूंकि ये भारतीय कंपनी है, इसलिए उन्होंने ये आशंका जाहिर की कि उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। Many people say that I am not transparent in my data. I think people should have patience to read the internet and look at what our articles are and how many articles we publish. More than 70 articles have been published in various international journals, one of the top journals in the world. Nothing less than that. So I think that's very important. We are better than even an academic institute of a country of this country in India. And I think we are extensively positioned in the public review. We have more than 400 patents. That shows our innovative capability of a company that we stand by today, representing the developing world in a public health point of view. And I think, we are conducting clinical trials not just in India. Many people accuse me just being in India, oh, we are hiding all the clinical trials. But I just look at it. We have more than 12 countries we have done a clinical trial, including UK. We have done 2 clinical trials. You can see here, we have done a type of TCV human challenge studies. We are doing one right now, COMVAC 5 and paratype E human challenge studies again in UK. And we have done phase 1 preclinical, phase 1 IND approved in UK, US. And we have done type of TCV and NTS project. Phase 1 just completed in US also, clinical trial. So it is not that we are an Indian company. We are doing a lot of clinical trials, various part of it. We have done 1 million children have been volunteered in our clinical trial, which I will touch upon a little bit. And WHO said our type of TCV with the first product in the world to come out. We have proven that India can innovate. India is not a copycat country. India can innovate. And we are the first conjugate vaccine we developed, and WHO said it's a breakthrough vaccine for typhoid control. It's very important because a lot of antibiotic resistance is happening globally, and this vaccine is a savior for that antibiotic resistance problem. And I think Gary also said it's going to save a lot of children in typhoid fever. And we have done human challenge studies right in Oxford. Nothing new that. And we are doing a clinical trial in Pakistan. We are doing in Nepal. We are doing in Bangladesh. We are doing in Navi Mumbai in Bombay with the CDC and ICMR collaboration. We are doing with University of Liverpool and University of Maryland partnership, Malawi and Burkina Faso. The reason why I want to say that, we are not a true Indian company. We are a truly global company. We are doing a trial multi countries in the world that people should not accuse us we don't know the clinical research experience. That's my point here. And I think Nature Medicine in 2018 said the treatment that made a headline in the globally 2018, our typhoid conjugate vaccine was mentioned. Probably this is the first vaccine mentioned in the Nature Medicine from the developing world. ये कृष्णा एल्ला है जो भारत बायोटेक के सीएमडी हैं, और इन्होंने जो बातें कही हैं दरअसल उन सारी आशंकाओं का जवाब है जो कल से, जब से कोवैक्सीन को मंजूरी मिली है सरकार की तरफ से, तब से आशंकाएं जो उठ रही हैं। आपको याद होगा बहुत कुछ कहा गया, क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुए हैं, ये वैक्सीन पूरी तरीके से निर्मित नहीं है, इसके क्यों केवल इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाज़त देगी, तरह की बातें की गई हैं। कृष्णा एल्ला ये कह रहे हैं कि हमारे पास वैक्सीन बनाने का सबसे ज़्यादा अनुभव है विश्व के अंदर, 400 से ज़्यादा पैटेंट हैं भारत बायोटेक के नाम पर। और वो बता रहे थे कि जो ट्रायल्स भी वो कर रहे हैं वो केवल भारत में नहीं कर रहे हैं, इस मायने में केवल भारतीय कंपनी भी नहीं है, एक ग्लोबल कंपनी है। दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर के वो रिसर्च कर रहे हैं। और कई उन्होंने ये भी कहा कि हमें ग्लोबल कंपनी है, जनता ये समझने की भूल ना करे कि हमारे पास अनुभव की, एक्सपीरियंस की कोई भी कमी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जीका वायरस जब आया था दुनिया में, उसकी दवा बनाने वाली, वैक्सीन बनाने वाली पहली कंपनी ये भारत बायोटेक कंपनी ही थी। उन्होंने ये कहा और
दुख भरे लहजे में उन्होंने कहा कि क्योंकि एक इंडियन कंपनी है इसीलिए भारत बायोटेक की छवि खराब करने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। अब जो आरोप लगे थे कोवैक्सीन बनाने के ऊपर, उसका जवाब कृष्णा एल्ला ने दिया और उन्होंने कहा कि ये कहा गया कि फेज 3 ट्रायल्स नहीं हुए, जिसे हम ह्यूमन ट्रायल्स कहते हैं, उसकी पूरी रिपोर्ट आए बगैर इसको मंजूरी दे दी गई। तो उन्होंने इसकी प्रक्रिया समझाई कि अगर फेज 1 और फेज 2 का ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल पूरा हो जाता है तो सरकार के पास इख्तियार होता है विश्व में कहीं भी, ये एक स्वीकार्य प्रक्रिया है, अगर फेज 1 फेज 2 का ट्रायल पूरा हो जाए तो सरकार उसको मंजूरी दे सकती है। इसके अलावा जितना सेफ्टी डेटा था उन्होंने कहा वो सारा का सारा हमने शेयर किया है और ये कई सारी वैक्सीन जो है इनएक्टिवेटेड है, ये कोई नई बात नहीं है, ये वो कह रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो NIV है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भारत का, उसने कोवैक्सीन बनाते वक्त भारत बायोटेक ने जो पद्धति इस्तेमाल की है, टेक्निक इस्तेमाल की है, उसको वैलिडेट किया है, यानी उसको स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर पारदर्शी ना होने के जो इल्ज़ाम लग रहे हैं बिल्कुल गलत हैं। जो भी अधिकृत संस्थाएं हैं भारत में जिनके पास ये सारा डेटा शेयर करना होता है, उनके साथ ये डेटा शेयर किया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये कहा कि विश्व में सबसे पहले जिस कंपनी का कोरोना का टीका लगाया जाना शुरू हुआ US में और इंग्लैंड में, वो थी फाइजर कंपनी, जिसने भारत में भी एप्लीकेशन दे रखी है। उन्होंने कहा हम किसी मायने में फाइजर से कम नहीं है। अगर फाइजर का टीका दुनिया के बड़े बड़े देशों में लग सकता है और वो भारत में भी लगाना चाहते हैं, तो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन फाइजर की जो वैक्सीन बनी है उससे किसी मायने में भी कम नहीं है। उन्होंने कहा कि सेफ्टी डेटा में जो साइड इफेक्ट का आंकड़ा है कोवैक्सीन का, वो 10% से भी कम है। फेज 1 के क्लिनिकल ट्रायल 90% से ज्यादा कामयाब रहे हैं। एनिमल ट्रायल की स्टेज पर वो फेज 1 की बात कर रहे थे और उन्होंने ये कहा कि देश भर में वो 500 मिलियन यानी 50 करोड़ डोज कोवैक्सीन की तैयार करने की क्षमता रखते हैं और तैयार करेंगे। डॉक्टर कृष्णा एल्ला ने कोवैक्सीन के इमरजेंसी यूज की अप्रूवल पर सवाल उठाने वालों को भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे सवाल उठाने वालों को पहले नियम पढ़ने चाहिए। अगर फेज 1 और फेज 2 के ट्रायल सफल हो जाते हैं तो इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनी होने के कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। Also clinical trial. Emergency use authorization. 2019 CDSO has formed a gazette notification. Please, I request every one of them to read the guidelines of gazette notification 2019. That they clearly said, if you have a platform is a proven platform technology, number one. Number 2, safe platform technology. Number 3, good preclinical trial data is available. Good phase 1 immunogenicity data. Phase 2 good immunogenicity data is available. Then you can license the product. Emergency license. That is allowed according to Gazette notification. Many people just talking about gossiping, everything in a different direction to just backlash on the Indian companies. That is not right for us. We don't deserve that. And I think H1N1 then, Ebola, a good example, Ebola vaccine was never completed a human clinical trial at all when Merck developed. WHO has done emergency authorization to do it in Liberia and Guinea, and those countries have done directly into human trial and sort of affair. And 2014, the license came in. 2009, they started outbreak. And 2014, the license came in. So that means emergency license is allowed globally. It is a practice. Even US government says if you have good immunogenicity data, can be done in emergency authorization. And I think look at it, the phase Merck Ebola vaccine, 39 subject and completion EMA 2020, they got November. Yeah. तो आप सुन रहे थे कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी के CMD जो सवालों के जवाब दे रहे थे। कुछ सवालों के जवाब मिले, कुछ जवाब मिलना बाकी हैं। ब्रेक के बाद उनके बारे में भी हम जानेंगे क्या कुछ बताया है डॉक्टर कृष्णा एल्ला ने। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी भी चल रही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं।